Good morning, class. Today I am going to explain about the last law of chemical combination, that is the Gay-Lussac's law of gaseous volume. This law was given by a scientist named as Gay-Lussac. He proposed a large number of reactions occurring in the gases. As a result of his experiment, he explained that there exists relationship among the volume of gases which are present as reactants and products. Clear? इट मीन्स बेटा इसमें जो भी हमारी रिएक्शंस प्रेजेंट होंगी उसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, गैशियस स्टेट में, और उनका हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर करेंगे. क्लियर? अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, कोई सॉलिड होता है, तो उसका मास कंसीडर करते हैं. यहाँ पर गैसेस हैं तो इसकी मेज़रमेंट हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ही करेंगे. सो ही पुट फॉरवर्ड in 1808 a law which is called as law of combining volume. It is also called as law of gaseous volume or also called as law of combining volume. And he stated that when gases reacts together, they always do so in वॉल्यूम्स. क्लियर? मीन्स जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करेंगी मीन्स वो हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स. व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, सो दे डू सो मीन्स दे ऑलवेज रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. क्लियर? उनको हम वॉल्यूम की टर्म्स में लेंगे. एंड दे बियर, और वी कैन से दैट दीज रिएक्टेंट्स बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर. क्लियर? वो जो गैसेस प्रेजेंट हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, दे ऑलवेज बियर सिंपल रेशो टू वन अनदर एज वेल एज टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, मोर देन वन है, टू है, जो भी प्रेजेंट हमारे पास, वे हमेशा सिंपल रेशो के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो भी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की होगी उसके विद रिस्पेक्ट जो हमारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं गैशियस फॉर्म में, दे ऑलवेज प्रेजेंट और रिएक्ट टुगेदर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड ऑलवेज हैव सिंपल रेशो. फॉर एग्जांपल, वी हैव टेकन अ रिएक्शन involving formation of HCl gas. So in this case we use H2 gas which combines with Cl2 gas to produce 2 moles of HCl. Clear? Suppose in this reaction we have balanced it because in the reactant side there are 2 hydrogen atoms, so we balance it by multiplying with the 2. Clear? Now here 1 mole of H2 gas combines with 1 mole of Cl2 gas to produce 2 moles of HCl. Now according to his law that when gases reacts together, यहाँ पर gases कौन कौन सी हमारी H2 and Cl2, they reacts together in terms of volume. अब इसको हम वॉल्यूम की टर्म में लेंगे. इट मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस. जितने यहाँ पर मोल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही वॉल्यूम कंसिडर करेंगे यहाँ. सो दे ऑलवेज react together in terms of volume which bear simple ratio to one another. इनका आपस में रेशो भी सिंपल आएगा and the ratio is also simple with respect to the product. प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल्स हैं, इट मीन्स यहाँ पर कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 2 वॉल्यूम. क्लियर? सो इन दिस केस द रेशो प्रेजेंट बिटवीन दिस रिएक्टेंट गैसेज and this product gas will always be simple as 1:2. जो भी हमारे वॉल्यूम का रेशो है उसको हम कंसीडर करेंगे 1 for H2, 1 for Cl2 and 2 for HCl. So it illustrates the law of combining volume. See one more example. For example, in the formation of ammonia gas, there will be combination of N2 gas takes place with H2 gas. Clear? Nitrogen gas combines with hydrogen gas resulting in formation of gaseous product named as ammonia. Now in this case the number of moles of nitrogen is 1, hydrogen is 1, ammonia is 1, but still the reaction is not balanced. First of all we will balance the reaction. Here hydrogen atoms are 3, in this case hydrogen atoms are 2, nitrogen is 2. Now here nitrogen is 2, in this compound there is only one nitrogen, so multiply this whole compound by 2.
When we multiply this nitrogen by 2, the number of H atoms becomes equal to 6. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से हर एटम को हमें मल्टीप्लाई करना है. Now it has 2 nitrogen and 6 hydrogen atom. And here on the left side we have only 2 hydrogen atom. When we multiply it by 3, it becomes equal to 6. Now the equation is balanced. These species all are present in gaseous state. Clear? This G in the bracket indicate the state of reactant or product, and all these are present in the gaseous state. So here number of moles of nitrogen in this balanced equation is 1. Therefore 1 volume of nitrogen gas, that is, suppose this is the volume of nitrogen gas, 1 volume of nitrogen gas combines with 3 volume of hydrogen gas. It means the amount of hydrogen gas is 3 times of nitrogen. Suppose this is the 3 volume of hydrogen gas to form 2 volume of ammonia gas. Clear? To form 2 volume of ammonia gas. This is 1 volume of hydrogen, this is 3 volume of nitrogen, this is 3 volume of hydrogen, and this is 2 volume of ammonia gas. Again, the ratio between these reactants and products was found to be simple, 1:3:2. Hence it again illustrates the law of gaseous volume or combining volume. Now it may be emphasized here that volume used in the reaction is expressed in the similar units, either in the milliliter और इन द लीटर फॉर्म. जो भी हम यहाँ पर वॉल्यूम एक्सप्रेस करेंगे हर कंपाउंड के लिए, मीन्स हर स्पीसीज के लिए, चाहे वो हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, उसको हम सिमिलर टर्म्स में ही सिमिलर यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे, चाहे मिलीलीटर में करें या फिर उसको हम लीटर में करें. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, atoms and molecules, or Dalton's theory and Avogadro's hypothesis. According to this concept, few questions arises to our mind when we classify the matter into elements, compounds, or mixture. The first is, why is one element different from the other? Why do elements combines to form compounds? And why is a compound different from mixture? Elements जो है वो different क्यों है एक दूसरे से? एलिमेंट्स कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं और कंपाउंड मिक्सचर आपस में डिफरेंट क्यों है? इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फिर हमें दिए डाल्टन ने, और उसने कंसीडर किया जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं. सो अ रियल मेंटल पिक्चर ऑफ मैटर वुड आंसर द अबव क्वेश्चंस व्हेन वी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग द डाल्टन्स थ्योरी. व्हाट डज डाल्टन थ्योरी स्टेट? दिस थ्योरी स्टेट दैट matter is made up of extremely small indivisible particles called as atoms. Matter is made up of small particles and these small particles are called as atom. And we know that atom is the smallest particle that may or may not exist independently. Second point is atoms of the same element are identical in all respect, that is size, shape and mass. बेटा ये जो डाल्टन थ्योरी है ये हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं. इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स जो हैं, मेनली सारे के सारे पॉइंट्स को हम 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सेकंड पॉइंट क्या स्टेट करता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, दैट इज़ साइज, शेप एंड मास. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो साइज़ में, शेप में और मास में सब फीचर्स की फॉर्म में कैसे होंगे? आइडेंटिकल, एक दूसरे के जैसे सिमिलर होंगे. ही आल्सो एक्सप्लेन दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो मास भी डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्वियस है ये. साइज एंड दे पोजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़, साइज एंड मास will be different if elements are different. Next point is atoms of the same or different elements combines together to form compounds. These compounds are now called as molecules. सेम एलिमेंट्स कंबाइन करें या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी उसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर लेटेस्ट टर्म के अकॉर्डिंग उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? मॉलिक्यूल्स. अगर सिमिलर टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. इफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंस टुगेदर इट इज़ कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. क्लियर? नाउ व्हेन द एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड they always combines together in whole number ratio as 1:1, 2:1, 2:3. ये पॉइंट हम लास्ट में कर चुके हैं. जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए तो कम्बिनेशन हमेशा वहाँ पर किस फॉर्म में होगा? दैट कम्बिनेशन विल बी ऑलवेज इन द सिंपल होल नंबर रेशो. एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइंस इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन कंपाउंड. अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं दो
वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट रेशो में, तो उस केस में हमारे पास कंपाउंड भी एक से ज़्यादा बनेंगे। ये पॉइंट हम कर चुके हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर। कम्बिनेशन ऑफ CM एंड O2 गिव्स CO, CO2, S प्लस O2 गिव्स SO2, SO3। क्लियर। तो उस केस में हमारे पास कंपाउंड भी एक से ज़्यादा फॉर्म होंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और वी कैन से दैट होल ऑफ द एटम रादर देन द फ्रैक्शन ऑफ एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो कंप्लीट एटम हमने लिया है, जितना भी पार्ट लिया उसका, वो सारा का सारा उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, उस रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा। लास्ट पॉइंट इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को हम, ये पॉइंट है जो हमारा, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ पर हमने टर्म मास यूज़ की थी, यहाँ पर क्या है, मैटर में एटम को यूज़ किया है। एटम इज neither can be created nor can be destroyed. Clear? Now next topic is explanation of laws of chemical combination by Dalton theory. आपको इसमें से स्टडी करना है कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं जो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टेट करते हैं। जितने भी हमने 5 लाज किए हैं उन सभी को यहाँ पर स्टडी करना है। ये दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the limitations and the modified forms of Dalton atomic theory.